Hey everyone, welcome back to another episode of Love, Food and Fitness. I'm your host Archana Kumar, an F&B consultant, a nutritional meal planner, and someone who truly believes that right food and correct lifestyle is the most powerful medicine in our lives. Today's episode is incredibly special, and why it's special, not just because it's around food and fitness, but it's around faith, courage, and a second chance at life. We often hear stories of survivors who come out, they battle many situations in life and come out much stronger. But rarely do we get a chance to sit right next to one and hear from their own selves that what their journey has been, um, not just physically but emotionally and mentally as well. My guest today is someone who was diagnosed with thyroid cancer about 12 years back, but he came out of it much stronger, much more active and joyful than ever. With the unwavering support of his doctors, his dietitian, his lovely wife, and two beautiful daughters, and most importantly, the unshakable belief that he had in himself, he rewrote his recovery process completely. His story is proof that when nutrition meets determination and when love meets faith, we can really turn around things completely. So, please welcome Mr. Harjeet Singh Lamba. I would advise go grab a cup of tea, take a deep breath so that you can listen to this heartwarming conversation without taking any break. It's about life after cancer and how the real transformation actually happens when the treatment truly ends. I'm naming this episode as the three F's: faith, family, and food, the healing recipe of a cancer warrior. Thank you so much. So let's welcome Mr. Harjeet Singh Lamba. टेस्ट करवाने के बाद जो पिक्चर उनके सामने आई तो ही वाज कंप्लीटली शॉक। 2013 एंड 2014 ये 2 इयर्स शायद हॉस्पिटल मेरा घर बन गया था। वाइफ ने एक अच्छी चीज कर दी थी कि मेरा हॉस्पिटल में दिल लगा रहे, तो उसने मेरे को एक आईपैड दे दिया था। तो मेरी छोटी बेटी, दोनों बेटियां मैसेजेस मेरे को रिकॉर्ड करके कि हम घर पे आपकी पापा वेट कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी अच्छे होकर आओगे, वो डेली बेसिस पे मेरे को भेजा करते थे और मैं उसको आईपैड पे पढ़ देता। हमारे पास तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम वो गॉड से प्रे ही कर सकते हैं। इस चीज़ को ये कह सकता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। इट वाज आई ओपनिंग फॉर मी। Healing is really not about hospitals and treatments. It's about faith, it's about love, it's about never giving up on yourself, no matter what life throws at you. Welcome, Namba साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं हसन जी। बिल्कुल ठीक है. So let's today talk about where this journey actually started. जब आपको when you came to know that you have thyroid cancer, कैसे पता चला and how was your reaction towards it? एक्चुअली क्या 2013 में मेरे को जो है बैक पेन थोड़ा सा होने लगा, तो जिसकी वजह से हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो With the back pain. बैक पेन, ड्यू टू बैक पेन। Okay. तो जैसे होता है आदमी सोसाइटी में जो डॉक्टर्स नोन होते हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ जी. तो उन्होंने मेरे को कुछ अल्ट्रासाउंड के टेस्ट लिखे और इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि उस दिन मैं टी शर्ट पहन कर गया हुआ था, तो उन्होंने नोटिस किया कि मेरा गला जो है वो भी काफ़ी स्वेल हुआ हुआ है, फूला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हरजीत, आपको अपना एक गले का भी अल्ट्रासाउंड करवाना है क्योंकि आपका गला एबनॉर्मल साइज से बड़ा हुआ है। तो मैंने उनकी बात मानी और मैं वेदांता जाके मैंने अपने टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद जो पिक्चर उनके सामने आई तो ही वाज कम्प्लीटली शॉक्ड एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम मेरी एज जो थी वो अराउंड 44 थी। Very और young. उस एज में जब उन्होंने कहा कि इट्स क्लियर शॉट कैंसर इन योर थायराइड एंड दिस, और उसके बाद वो मेरे को वेदांता हॉस्पिटल के लिए उन्होंने रिकमेंड किया और वहाँ डॉक्टर्स के पास मेरे को मिलवाया कि आप आगे फर्दर के टेस्ट कीजिए। मुझे 99% श्योर लग रहा है कि आपको कैंसर है। How did you take it? मतलब and आपने was your family with you जब पता चला या आप अकेले ही थे? नहीं, उस वक्त तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी, लेकिन कैंसर का नाम अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होता Scary था। होता है बहुत ज़्यादा. लेकिन फिर भी उन्होंने अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज पे बोला था, तो शायद इतना ज़्यादा नहीं अभी हमें लगा था कि ऐसा कुछ। तो फर्दर जब बाकी टेस्ट हमने वेदांता से करवाए, जो भी रिपोर्ट्स थी, एफएनएसी वगैरह जो भी होती हैं, वो जब कंफर्मेशन आई कि ये इस लेवल तक बढ़ा हुआ है कि सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और उस वक्त हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ बन गई थी। ऐसे लग रहा था कि हमारी फैमिली के लिए पता नहीं है क्या हो गया, क्या कैसे होगा, क्योंकि एक अचानक किसी को इस तरह की चीज़ पता चले तो वो बहुत बड़ी बात। Was your wife also working or were you the only family earning family member? नहीं, ऐसा है, मैं आई एम इन गवर्नमेंट जॉब
मेरी वाइफ जो है वो प्राइवेट जॉब में है, मल्टीनेशनल कंपनी So she में। was working. हाँ जी, शी वाज वर्किंग। वी हैव 2 डॉटर्स, लवली डॉटर्स। उसमें बड़ी डॉटर उस टाइम 12th में थी, 12th स्टैंडर्ड में। छोटी जो है वो अभी स्कूल में थी। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, और बिल्कुल। इससे मतलब क्या होगा, कैसे करना है, ये सब चीज़ें हमारी समझ से बाहर थी। क्योंकि कैंसर सिर्फ मेंटली नहीं, आपको हाँ फाइनेंशियली जी, भी हाँ। बहुत ड्रेन कर देता है। हाँ जी, हाँ। देखिए वो गवर्नमेंट सर्विस में होने की वजह से शायद इतना ध्यान तो नहीं गया, लेकिन ये है कि सेकंड ओपिनियन लेनी, दुनिया भर के टेस्ट करवाने जो इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं, उसमें तो फाइनेंशियल ड्रेन आउट तो होता ही है। क्योंकि आप जब एडमिट होते हैं तभी हॉस्पिटल में इनडोर का खर्चा जो है गवर्नमेंट उठाती है। उससे पहले आप जितनी भी एडवाइजेस ले रहे हैं या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, वो तो आपको पॉकेट से ही खर्च करने होते हैं। जस्ट लाइक इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस का भी जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं हाँ तभी जी, उसके हाँ बाद वी गेट कवर्ड अप, जी, 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 सपोर्ट मिल जाती है, जी, वही चीज़ आप बता रहे हैं। जी, जी, जी। सो योर जॉब हेल्प्ड यू अ बिट, हाँ, आफ्टर फॉर ट्रीटमेंट तो इट 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 हेल्प्ड मी। हेल्प्ड यू, इट हाँ जी, हेल्प्ड यू। हाँ जी, हाँ जी। Okay. Were your doctors also as supportive as your family was? मतलब आपको वहाँ पे या challenges मिले आपको जो डॉक्टर्स के देखो पास ऐसा visit है, किए? मेडिकल प्रोफेशन इज़ अ बिज़नेस। सब जगह डॉक्टर्स के ऊपर एमबीएस बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात होती है कि एक पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर फेथ आना या उसके ऊपर रिलेट कर पाना, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसमें मुझे काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, क्योंकि इनिशियली मुझे वेदांता में जो मुझे थायराइड कैंसर के अलावा मेरा कैंसर का कुछ पार्ट जो है वो मेरी किडनी तक जा चुका था, राइट ओह, किडनी। और इट वाज इन गॉल ब्लैडर आल्सो। तो उसमें डॉक्टर्स जो थे, हर हर डॉक्टर अपनी फील्ड का अलग होता है। ऑन्कोलॉजिस्ट अलग थे, किडनी वाले अलग थे। तो मुझे वहाँ काफ़ी चैलेंजेस तो आए, क्योंकि कोई भी टेबल पर एकजुट होकर कुछ करने को तैयार नहीं था। बट समहाउ गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी। तो हम लोग फिर सेकंड चॉइस के लिए अपोलो गए, अपोलो के बाद फोर्टिस गए। फोर्टिस के बाद हम जब मैक्स पहुँचे तो समहाउ भगवान को कुछ और मंजूर था। वहाँ हमें एक भगवान के रूप में एक अच्छे डॉक्टर मिले, डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी जी, जो कि उस टाइम डायरेक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट थे। और उन तक किसी तरह हम पहुंच पाए। और उन्होंने मेरी पूरी रिपोर्ट्स को देखने के बाद और मेरी हिम्मत को देखने के बाद उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो वन गो में ये तीनों सर्जरीज करने को वो तैयार हो गए। so your gallbladder was removed, the thyroid यस, gland was इन वन removed. गो कंप्लीट थायराइड वाज रिमूव। राइट किडनी से पार्शियली उन्होंने निकाला, गॉल ब्लैडर निकाला, और ये सारी सर्जरी उन्होंने वन गो में करी। और अराउंड 13 आवर्स ये सर्जरी चली थी। Wow. Which stage was this जब आपको पता चला? इट वाज द थर्ड स्टेज ऑफ। So it was not initial stage, आपको हाँ देर जी, से हाँ पता जी। चला। हमें ज़्यादा सेकंड ओपिनियन के लिए टाइम इसीलिए लगा कि थायराइड कैंसर जो है वो इनिशियल स्टेज पे हो, फर्स्ट या सेकंड पे, तो वो आयोडीन और कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन्स के साथ ठीक कर लेते हैं, ओरली भी कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन जब ये 100% हो गया कि मेरी सर्जरी होनी ही होनी है, रिमूवल होना ही होना है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अपने आप को किस डॉक्टर के सेफ हैंड्स में छोड़ा जाए, किस डॉक्टर पे ट्रस्ट किया जाए। क्योंकि मेरी वाइफ जो थी शी वाज वर्किंग विद इंश्योरेंस सेक्टर। तो वो बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस थे उनके यहाँ। इंटरनल हमें पता चला कि बहुत से डॉक्टर्स अपने इंटरेस्ट के लिए भी अननेसेसरी केसेस को बढ़ा देते हैं या बिगाड़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसा कर देते हैं, लेकिन समहाउ मन में था, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर से नेगेटिविटी भी पता चल रही थी। तो किसी तरह से हम मैक्स में पहुंचे और हमें डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी जी के पास। it's all about faith, यस, इट्स जिसमें ऑल आपका अबाउट फेथ। ट्रस्ट और फेथ हाँ आ जी। जाए तो। फेथ भी इसलिए आया कि जब सेकंड ओपिनियन के लिए उनके पास गए थे, तो रिपोर्ट्स लेने के लिए के बाद हमें वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। तो सडनली वो डॉक्टर हमें अचानक, शायद कहते हैं ना भगवान की मेहर, हमें वो पार्किंग स्लॉट पे मिल गए विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। उन्होंने हमसे रुक कर बात की, हमारी पार्किंग स्लॉट रिपोर्ट्स में? पार्किंग स्लॉट पे। ओके। और रात के 8 साढ़े 8 का टाइम था। उन्होंने हमारी पूरी रिपोर्ट्स वहीं पे देखी ऑन द स्पॉट। और उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद एक बड़ी खुशी सी महसूस हुई थी, क्योंकि उस रिपोर्ट में एफएनएसी में वो जो पोर्शन लिया गया था नेक का, उसमें कैंसर सेल्स नहीं थे। नहीं थे? नहीं थे। लेकिन इतनी मतलब लाइफ में ऐसी खुशी सी महसूस हो रही थी कि जैसे हम छूट गए। मे बी हम शायद लौट के दोबारा आते ही नहीं हॉस्पिटल में। उन्हीं डॉक्टर्स की एडवाइस थी कि सर अगर आपका कैंसरस नहीं भी है, तो अगर आपके शरीर में गिल्टियाँ हैं, तो उनको क्यों रोकना, उनको क्यों रखना, क्यों पालना। आप हमारे कहने पे सर्जरी जो प्लान की हुई है उसे जाने दो। और समहाउ इट्स ए गॉड्स ओन डिसीजन। हमारा उन डॉक्टर्स पे इतना ट्रस्ट हो गया था, डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी जी के ऊपर, कि हमने उनकी बात को माना।
और वो सर्जरी जैसे प्लान थी उसको सर्जरी को होने दिया। तो सर्जरी होने के बाद ये सब चीज़ें निकल कर आई, जब उनको उस पार्ट को निकालने के बाद जब वो फ्रोजन टेस्ट हैं दुनिया भर के फॉरेन में भेजा जाता है, तो वो 100% कैंसरस निकला। तो मतलब बीच में जो रिपोर्ट आई थी कि वो कैंसरस नहीं है, मे बी हाँ वो जी, पार्ट वाज नॉट हाँ जी, कैंसरस। उसमें भी भगवान ने हमें बचाया। हमने उस डॉक्टर पे ट्रस्ट किया, अपने आप को उनके पूरे हवाले किया, उनकी बात को माना, तो उसकी वजह से जो है वो मेरा, देखो कहते हैं ना लाइफ में कुछ भी होता है उसकी करेक्शन होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, आपको कोई चैलेंज है तो हम वो ड्यू टू फेथ वो कर पाए। माय गॉड, अदरवाइज अगर आप कोई मान जाते कि कैंसरस नहीं है तो हाँ आप जी, हाँ जी, हाँ जी, दोबारा जाते ही नहीं। हाँ जी। देखिए वो देखो लाइफ में ना जो होना है वो तो खैर कभी टल नहीं सकता, लेकिन मुझे आज भी याद है 2013 एंड 2014 ये 2 इयर्स शायद हॉस्पिटल मेरा घर बन गया था। मैं घर पे कम हॉस्पिटल्स में ज़्यादा रहता था। ओके, अंडरस्टैंड। है ना? पहले सर्जरी के बाद इसमें प्रोसीजर होते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन दी जाती है, बॉडी में से रेडिएशन निकलती है, 15-20 दिन के लिए आपको आइसोलेशन में रखा जाता है। तो उस आइसोलेशन के टाइम पे एक सेल्फ रियलाइजेशन थी कि मतलब मैं क्या बताऊँ कि इतना पाठ किया, इतना किया कि बस मन में ये था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी दोनों डॉटर्स को या ये मेरी इनोसेंट वाइफ है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये कैसे दुनिया से करेगी। बस उसी ने मेरे को हिम्मत दी और मुझे ये था कि मुझे किसी भी तरीके से मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। डॉक्टर्स ने जो अपना काम करना है वो करने दो, मुझे हिम्मत नहीं छोड़नी है इस वजह So से। your wife and daughters became an inspiration. जी, 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 जी। तो आपकी जैसे कैंसर के बाद कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह होती है, वो सब आपका भी हाँ, हुआ? मेरे को जी कीमोथेरेपी नहीं हुई, मेरे को जो है वो न्यूक्लियर मेडिसिन पिलाई गई। उस ओके, न्यूक्लियर मेडिसिन की डोज़ डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं और वो डोज़ के बाद जो है आपको आइसोलेटेड कर देते हैं फॉर 15 डेज़ मिनिमम। जब तक आपकी बॉडी से रेडिएशन का एक लेवल होता है, उस लेवल तक वो रेडिएशन कम ना हो जाए, आपको घर जाना भी अलाउड नहीं होता। घर जाना क्या, ये एक जेल की तरह होता है जिसमें खाना भी नीचे से दिया जाता है, दरवाजे के नीचे से, और उसे कोई टच भी नहीं करता और वो सीधा खाने के बाद आप उसको वेस्ट उसमें डालते हैं। रियली? हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो आपको मेंटली बहुत टॉर्चरस रहा होगा। मतलब मैं कोविड के दौरान जब मेरे को 2 हफ्ते अंदर रहना था, हाँ जी। हम सब अंदर बंद हो जाते थे कमरे के अंदर जब कोविड होता था, तब वो दिन काटने कितने मुश्किल थे। पर ये तो देखो उस टाइम मेरी हमारे से ना वाइफ ने एक अच्छी चीज़ कर दी थी कि मेरा हॉस्पिटल में दिल लगा रहे, तो इसने मेरे को एक आईपैड दे दिया था। और इट्स अच्छा। अ चाँस की बात है, मेरा जो है ये सितंबर में पकड़ा गया था और मैंने सितंबर में अपनी वाइफ के बर्थडे पे आईपैड उसे गिफ्ट दिया था एप्पल का। तो मेरी छोटी बेटी, दोनों बेटियाँ अपने पॉज़िटिव मैसेजेस मेरे को रिकॉर्ड करके कि हम घर पे आपकी पापा वेट कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी अच्छे होकर आओगे, वो डेली बेसिस पे मेरे को भेजा करते थे और मैं उसको आईपैड के ऊपर देखता था। आइसोलेशन में डॉक्टर्स ने मेरे को वो आईपैड यूज़ करना अलाउ कर दिया था। तो आप कोई मूवीज़ वगैरह भी देख पाए होंगे टू हाँ, कीप नहीं योरसेल्फ मूवीज़ नहीं जी, एंटरटेन्ड? मैं उसमें ये था कि दिन में कम से कम 4 बार सुखमनी साहिब का पाठ करते थे। एक पाठ को तकरीबन सवा घंटा, मतलब 70 टू 80 मिनट्स लगते हैं। तो 4 टाइम्स मैं सुखमनी साहब का पाठ? सुखमनी साहिब का पाठ जो है वो चलता रहता था। क्योंकि हम लोग गॉड फ़ियरिंग हैं और बीइंग ए सिख, हमारे पास तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम वो गॉड से प्रे ही कर सकते हैं कि ठीक है अपनी गलती की वजह से या जाने-अनजाने से हम इस चीज़ में फँस गए हैं तो निकालना तो तो बहुत उन्होंने ही बहुत है। टफ टाइम रहा होगा। तो ऐसे आइसोलेशन में रहना भी अपने आप में आज सज़ा की ही डेट है। में मैं इस चीज़ को ये कह सकता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, इट वाज़ आई ओपनिंग फॉर मी। आई ओपनिंग कैसे, वो थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड पे जाता हूँ। जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली में थे, पंजाबी फैमिली है और पंजाबी फैमिली वैसे ही बड़े जोशीले होते हैं। बिल्कुल। कोई आपको बुखार हुआ, गले में दर्द है, चल यार गोली खा, ऑफ़िस चल, है हाँ ना? जी, हाँ जी। तो बड़ा लाइटली ले रहे है थे ना? हर चीज़ को। खाना शाम को जी फैमिली के साथ ही तो खाते हैं, आने दो, रिच फूड, बटर चिकन खा रहे हैं, वो जी लक्कड़ पत्थर हजम है हमें। तो अगर ये मेरे को नहीं होता तो शायद मुझे समझ नहीं होती और मैं ऐसे ही पास हो जाता। तो मुझे इस चीज़ ने फूड की क्या इम्पोर्टेंस है, फूड आपको बचा भी सकता है और फूड के खाने के चक्कर में आप अपना क्या हाल कर दोगे। क्योंकि आई वाज़ ओवरवेट, ऑफ़िस आना-जाना 100 किलोमीटर्स, उसके बाद 8 घंटे की ड्यूटी करना, फिर घर पे आके पंजाबी स्टाइल में लेविश खाना खाना, बड़ी-बड़ी बातें करनी।
कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, आपका लाइफस्टाइल रूटीन जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे हम जैसे जो यूथ में था ना, जो 18-20 साल में हमारी खाने पीने की कैपेसिटी, ऐसे लग रहा था सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तो लेकिन वो एक स्टेज के बाद वो बॉडी। अपने आप को महसूस नहीं होता, जब तक कोई आदमी सर्जिकल ब्लेड के थ्रू ना गुजरे, तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आदतें चेंज करनी चाहिए। या आई विश लोगों को पहले पता चल जाए, हाँ जी। इस स्टेज से पहुंचने से पहले ही पता चल जाए कि नो, टेक केयर ऑफ योर बॉडी ज़्यादा अच्छा हाँ, नहीं रहेगा। पता तो देखो सबको होता है, लेकिन कोई केयर नहीं केयर नहीं करता, करता है। है ना? हम लोग जो है एक कार खरीदते हैं, उस कार को मेंटेन करने के लिए इंश्योरेंस लेंगे, उस कार में अगर फ्यूल पेट्रोल है तो हम उसमें डीजल नहीं डलवाएँगे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बिल्कुल। कार पुरानी होगी तो उसे फास्ट नहीं चलाएँगे, लेकिन अपना जो शरीर है, अपनी जो बॉडी है, उसके प्रति हम शायद बिकम केयरलेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो स्वाद में और प्रॉब्ली ज़िंदगी के मज़े में हम भूल हाँ जी, जाते हैं कि उसको भी हाँ जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत है। हाँ जी, हाँ जी। आदतों को चेंज करना पड़ता है टाइम के हिसाब से। ये बॉडी जो है ये भी मशीनरी है, इस मशीनरी के अंदर टाइम के साथ क्या चेंजेस आने चाहिए, वो अवेयरनेस तब नहीं थी मेरे पास। तो ये अवेयरनेस आपके डॉक्टर्स ने आपको हेल्प करी लाने के लिए, या कैसे हुआ? देखो ऐसा है, ये एक ना बहुत बड़ी जर्नी है। मैं अपनी वाइफ़ के साथ जब अपने रिव्यू के लिए जाता था ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर का एक ही कंसर्न होता था कि आपने वॉक कर रहे हो, आपका वेट कितना कम हुआ। एक्चुअली क्या है, मेरे को जब ये कैंसर हुआ था उस टाइम पे ऑलमोस्ट मेरा वेट जो था, आई वाज़ ओवरवेट। तो 5'10" हाइट के बाद मेरा 120 प्लस वेट था। तो अमेरिका से मेरी वाइफ़ के मामा जी हैं, वो छिब्बर साहब बड़े जोशीले आदमी थे। हाँ जी। वो वहाँ से मेरे को कॉल करके पूछा करते थे, "हरजीत सिंह, कितना क वज़न घटिया?" ते मैं उनको हँस के कहता था, "मामा जी 100-200 ग्राम सामान घटण नाल वज़न थोड़ी घट देने।" तो मैं अपनी वाइफ़ के साथ जब डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर साहब को पूछते थे कि आपका क्या एक्टिविटी है, आगे क्या कर रहे हो? मैं उनको बोलता था, "सर मैं 5 किलोमीटर चलता हूँ, मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ।" और मैं चल भी रहा था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं चल रहा था, मैं चल भी रहा था। आई वाज़ ऑन लीव और मैंने अपनी एक डेपुटेशन ले ली थी ऑफ़िस की ओर से, जो मेरे घर के बिल्कुल पास में थी, सो दैट कि मैं अपने हेल्थ को गेन करने के लिए सैर वगैरह कर सकूँ, मेरा ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाए। तो लेकिन मेरे को ये लगा कि पूरे 1 ईयर वो रेगुलर एफर्ट्स करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मेरा 2-3 किलो वज़न से भी ज़्यादा कम हुआ होगा। ओके। तो उसी पीरियड में मेरी बड़ी डॉटर ने मेरे लिए एक ऐसा काम किया, उसको लगा कि शायद पापा को एकदम से कुछ बोलेंगे तो इनको फ़ेथ नहीं होगा। उसने थ्रू डायटीशियन, दैट इज़ डॉक्टर डाइट, डॉक्टर टीना सप्रा, जो हैं गुड़गाँव में, इनकी अच्छा। साउथ दिल्ली में भी ब्रांचेज़ हैं एज़ ए डायटीशियन। शी इज़ ए क्वालिफाइड डॉक्टर ओके। और ये यूएसए से आके इंडिया में शायद हम लोगों का भला करने के लिए सेटल हुई। हाँ, तो मेरी नाइस। बड़ी एल्डर डॉटर ने पहले मेरे सामने अपना वज़न कम करके मुझे दिखाया। अब जैसे घर में फूडी थे, तो फूडी खाली अकेला मैं ही तो नहीं था, हम पूरे परिवार के साथ खाते थे। तो ऑलमोस्ट ओबेसिटी जो थी वो पूरे परिवार में ही थी। घर में बच्चे भी ओवरवेट थे, मेरी वाइफ़ भी ओवरवेट थी। तो मेरी एल्डर डॉटर जो गुरबानी है, शगुन, आजकल वो कनाडा में है, उस बच्ची ने 10 मंथ्स लगाए और मेरे को ऐसा मिरेकल करके दिखाया। मेरी दोनों बेटियों की एज में 9-10 साल का फ़र्क है और उस लड़की ने 10 मंथ्स में वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन करके दिखाई कि दोनों लड़कियों के कपड़ों का साइज़ सेम हो गया। अब मैंने जब उसको ये करते हुए देखा तो मेरे को अंदर से एक लगा कि नहीं यार, ये मैं जो कर रहा था, वो सही तो नहीं मुझे था। पहली बार ये समझ में आया कि एक्सरसाइज का रोल तो शायद 20-30% भी नहीं है। 80 टू 90% रोल जो है वो डाइट डाइट का का है। होता है, क्या खा रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। डाइट का है। और इससे भी ज़्यादा अर्लियर हमें लगता था कि यार बटर चिकन खा लिया, काजू खा लिए, बादाम खा लिए, शायद इससे ताकत मिलती है। लेकिन अनलेस अंटिल जब तक आप किसी समझदार डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, ये जो डायटीशियन का जिसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये एक साइंस है। वो बिल्कुल। डॉक्टर ही जानती है कि आपके किस ऑर्गन को कितना कब रेस्ट देना है, कितना उसको चलाना है। उस डॉक्टर ने मेरी डाइट के लिए बहुत प्लानिंग करी, कब पैनक्रियाज़ को रेस्ट देना है, कब किडनीज़ के लिए क्या करना है। अकॉर्डिंग टू दैट शी यूज्ड टू गिव मी द डाइट, जिसकी वजह से मेरे चीज़ें जो हैं उसमें करेक्शन होनी शुरू हुई। एक टाइम के बाद मेरा वेट भी कम हुआ और मुझे ये कहते हुए मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि वो मेरा जो सोच थी, उस सोच को उन्होंने बदल दिया। हम जो सोचते थे ना ज़्यादा खाने से, रिच खाने से ताकत आती है,
करेक्ट चीज़ और कम खाने से जो एनर्जी मिलती है, वो चीज़ जो है वो मुझे इट्स डॉक्टर व्हाट डाइट की। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ ज़रूरी जी, होता है करना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद जो है मैं आज 2013 के बाद 2025 में हम लोग चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए हैं। हाँ जी। और कैंसर के बाद, थेरेपीज़ के बाद मेरे को हार्ट की दिक्कत भी आई थी। जो कि आज तक क्लेम नहीं कर सकते, लोगों का कहना ये है कि वो जो थेरेपीज़ देते हैं उससे ब्लॉकेज भी होती है। तो उसमें मेरे स्टंट भी डले थे, और वो स्टंट भी 2014 में डले थे। तो 2014 के बाद आज तक ड्यू टू डॉक्टर डाइट मेरे को कुछ भी नहीं और करवाना पड़ा। मैं आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, थैंक्स टू डॉक्टर डाइट, थैंक्स टू टीना सप्रा, जो जिन्होंने मुझे गाइड किया, मेरे लाइफस्टाइल को चेंज किया, और मैं बिल्कुल नॉर्मल जी रहा हूँ। जैसे आप कोई आदमी, मुझे उन पे ट्रस्ट कैसे आया वो तो मैंने आपको बताया ही, ड्यू टू अपनी डॉटर का फॉर्मेशन जो देखी उसकी वजह से मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है। जैसे कि हम घर की सफाई करते हैं ना, ऐसे ही जो है ना, डॉक्टर डाइट जो है, या डॉक्टर के पास जाना, डाइटिशियन के पास जाना, जस्ट लाइक घर अपने शरीर की सफाई शरीर की करना है। सफाई है। क्योंकि वो डिटॉक्स करवाते हैं, वो इस तरह से आपके शरीर को करते हैं कि फाइबर कैसे देना है, कैसे चीज़ें खानी है, मतलब आपको फूड जो है वो आपकी मेडिसिन बन जाएगा। तो वो उसके लिए मैं अपने डॉक्टर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि भगवान ने कुछ मेरे टाइम बाद को। वो फूड भी आपको बटर चिकन से ज़्यादा अच्छा लगने लग गया होगा। हाँ, देखो मैं मतलब आपको सच्चाई बताऊँ, हम लोग पंजाबी हैं, हमारे घर में अगर 2-3 किलो भी मिठाई आ जाती थी तो सुबह मिलती नहीं थी वो फ्रिज में। मतलब अच्छा। हम लोग सोते नहीं थे, रात को पानी पीने के बहाने जिसका जो दाव लगता था फ्रिज में से रसगुल्ले, गुलाब जामुन जो भी है, वो खा जाते थे। तो टीना सप्रा डॉक्टर ने मेरे को जो एक बहुत बड़ी चीज़ दी, एक तो मेरी शुगर को बंद किया, और दूसरा उन्होंने कच्चा नमक जो है, उन्होंने कहा कि ये सॉल्ट जो है ये ज़हर है। कुक्ड सॉल्ट आपको फिर भी अलाउड है। ये 2 चीज़ें हमने बाँधी अपने पल्ले। उसके बाद आज हमें फ्रूट खाने में जो आनंद आता है, आज आप मेरे को चीनी वाली चाय दे देंगे तो एक बार मेरा मन कच्चा हो जाएगा। नेचुरल चीज़ों में से शुगर को एन्जॉय करना हमें बहुत मज़ा आने लगा। हमें फ्रूट्स बहुत अच्छे लगने लगे। बजाय मिठाई के आप कोई फ्रूट सर्व करेंगे तो हम उसको ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, और लाइफ़ हमारी उससे चेंज भी हुई है और आपके सामने है। अ, एक बेटी की मैंने शादी कर दी है अभी जस्ट इसी साल शुरुआत में। दूसरी बेटी कंग्रेचुलेशंस। मेरी कॉलेज में है, शी इज़ डूइंग इको ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाउ वंडरफुल। तो अभी उस बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। बहुत कुछ बिल्कुल करना है करना क्या, है। मुझे तो एक एक चीज़ और आई थी कि अभी अभी तो अपने लिए जीना शुरू करना है। बिल्कुल सही अभी जब हम बात है। अपने बच्चों की शादी करेंगे, आगे उनके बच्चे देखने हैं। बिल्कुल देखने अब हैं, तो बिल्कुल उसके देखने लिए हैं। तभी देख पाएँगे ना जब ये अपने अंदर ये जो आप चीज़। फिट रहेंगे खुद। हाँ जी, फिट रहेंगे। फिट रहने से मतलब है कि आप डाइट ठीक खाएँगे, अपने अंदर करेक्शन रखेंगे। बिल्कुल। तो मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है, अगर किसी को कोई मेरे रिपोर्ट्स भी देखना चाहे तो वो देख सकता है कि मेरे जो ब्लड रेट्स हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, या जो हीमोग्लोबिन है, वो एक नॉर्मल से भी बेटर है ड्यू टू दैट डाइट। वंडरफुल, हाँ जी, वंडरफुल। वैसे इस जर्नी में कहते हैं कि ऑफ कोर्स जो पेशेंट होता है वो सफ़रर होता है, हाँ जी, उसी के साथ ज़्यादा दिक्कत शुरू होती है, बट जो केयर गिवर्स होते हैं, फैमिली होती है, वो भी कम दौर से नहीं गुज़रते हैं, जितनी दिक्कतों से वो भी गुज़रते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो, बट दे आल्सो गो थ्रू अ जर्नी। इनफैक्ट आजकल तो ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो केयर गिवर्स को सपोर्ट भी करते हैं। हाँ जी। तो व्हाट वाज़ बिकॉज़ आपके बच्चे भी तब छोटे थे, तो उनकी जर्नी कैसी थी? आपकी वाइफ का इनिशियल न्यूक्लियर फैमिली, तो कैसे सपोर्ट सिस्टम कैसे चला आपका? देखो, ये आपस का परिवार का ही एक दूसरे के साथ अटैचमेंट थी, या एक दूसरे के लिए प्यार था जिसको देखकर एक आस सी बंधी रही। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टांस बताता हूँ कि मेरे को ऑपरेशन से पहले डॉक्टर्स ने, जो उनका काम होता है रिकमेंड करना, उन्होंने स्पेसिफिक 10 इंजेक्शंस मेरे को ऑफर किए कि अगर आप ये इंजेक्शंस लगवाएंगे तो आपको जो ऑपरेशन के टाइम पे जो होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाएंगी। ओके। तो इस तरह के जो इंजेक्शंस होते हैं, या इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं, इसको जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, या जो इंश्योरेंस जो आप ले रखी है आपने, वो इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो मेरी वाइफ का उस टाइम वो जो इंजेक्शन था, वो एक इंजेक्शन तकरीबन 1.25 लाख या 1.5 लाख का था। तो मेरी ओह वाइफ माय ने गॉड! उस टाइम पे वो जो 10 इंजेक्शंस लगाने का डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा लेकिन हम इसको अपनी पॉकेट से लेंगे
ताकि आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि वो जो बाद में मेडिसिन पिलाई जाती हैं, जो न्यूक्लियर मेडिसिन, उससे वॉमिटिंग सेंसेशन और इस तरह की बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने के मतलब उनका ये मानना है कि हो सकते हैं। सिर्फ उसको क्योर करने के लिए हमने 10 इंजेक्शंस की पेमेंट तकरीबन उस टाइम इसी चीज़ का तकरीबन 13-14 लाख रुपया होगा, जो मेरी वाइफ ने हमारे अपनी सेविंग से, हमारे बैंक से पे किया। और मुझे मतलब बड़ा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि भगवान ने ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे दिया, ऐसे प्यारे बच्चे दिए कि जिनकी शक्ल देखकर मेरे मन में था कि नहीं, कुछ अपने आप से भी कुछ करना है। डॉक्टर तो अपना रोल कर ही रहे हैं, अपना प्रोसीजर कर ही रहे हैं, उसके बाद कम बैक के लिए मुझे भी कुछ अपने एफर्ट्स डालने हैं। और वो एफर्ट्स यही थे कि मैं फेथ रखूं, मैं उसके बाद जो मुझे प्रिकॉशंस दी जा रही हैं मैं वो प्रिकॉशंस को लूं। फॉलो करें strictly। और तीसरा ये था कि उसके बाद फिर ये डॉक्टर डाइट हमें भगवान ने अपने आप मिला दी, और अपने आप क्या मतलब मेरी बेटी ने मेरे लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाई। आई कैन शेयर हर फोटोग्राफ्स जो है उसके बिल्कुल साथ। हाँ आप जी, शेयर करिए इसको। हाँ जी, हाँ जी, we'll share with everyone also। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, that's so nice। आपका इस सारी जर्नी में सबसे डिफिकल्ट मोमेंट कौन सा था which made you turn around the whole thing also? देखो, जिस टाइम मैं एडमिट हुआ था ना हॉस्पिटल, तो उस टाइम जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, खासकर आपके अंकल आंटीज या पेरेंट्स, वो जो साथ में बैठ के वो जो मतलब मैंने अपने कानों से सुना है कि मेरे रिलेटिव्स मेरे मुंह पर कह रहे थे, नॉट इन ए रॉन्ग सेंस, उनको ये दुख हो रहा था कि यार ये बेचारा कुड़िया वे आ जाता। तो आई वाज शॉक, मैंने कहा यार, कैंसर सुनने के बाद भी मुझे नहीं लगा था मैं गया, तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ इतनी Assume बड़ी कर रहे चीज हैं कि हो गई आप है कि ये पूरी का पूरा मेरा जो फैमिली है, मतलब फैमिली मतलब मेरे रिलेटिव्स नियर एंड डियर, वो तो ये कंफर्म मान के चले हुए हैं कि मेरा जाना तय है। तो उसने मेरे को अंदर से थोड़ी सी विल पावर को मेरी मेरी स्ट्रॉन्ग किया है कि नहीं यार, ये इसको चेंज करना है। और आई बिलीव कि आप प्रेयर करो, अरदास करो, तो उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल है, इसी बिल्कुल वजह है। से मैं वो जो मैंने आपको बताया था कि मैं जब न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए हॉस्पिटल में रहता था, तो मैं 8 से 10 घंटे वहाँ, हालांकि टीवी लगा होता था, मैंने कोई टीवी पे मूवी वॉच नहीं की, 8 या 10 बार मैं पाठ करता था और वो मेरे को ताकत देता था। और कुदरत का वो देखो कि वो जो मेरे को वो जो मैक्स साकेत के अंदर वो जो बना हुआ है रूम जहाँ पर वो न्यूक्लियर मेडिसिन पिलाई जाती है, वो एक अलग सा कॉर्नर है जहाँ से कुतुब मीनार दिखता है। अच्छा। और वहाँ पर रोज मेरे को एक ऐसी फीलिंग आती थी कि वहाँ एक बाज आकर बैठता था। तो मुझे ये लगता था कि ये बाबा जी का आशीर्वाद है, क्योंकि हमारे जो गुरु साहब थे उनको भी वो कंधे पर बाज बैठा करता था। तो मुझे ये ओके। लगता था कि यार ये तेरे को ब्लेसिंग देने आया और तूने हिम्मत नहीं हारनी है। तो उसी ने मेरे को ताकत दी, और ये बच्चों की सपोर्ट, परिवार की सपोर्ट, जिसकी वजह से मैं वापस आया, और वापस कम बैक भी ऐसा किया कि मैंने तकरीबन 30 टू 35 केजी वेट कम किया। उस वेट कम करने ने मेरे को एक मौका दिया कि मैं सरवाइव कर पाऊँ, क्योंकि मेरे कैंसर के बाद मेरी फैमिली में मेरे नियर एंड डियर 3-4 लोग अ, चले गए, और विद इन 1 ईयर चले गए। तो मुझे भगवान ने, मुझे कोई ऐसी दुआएं लगी थी या मेरे परिवार की अरदासों में दम था कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। मैंने उस मौके को फिर आगे ये समझ कर कि ये भगवान का हुक्म है, उसमें अपने एफर्ट्स डाले। एफर्ट्स डालने भी बड़े ज़रूरी हैं। वो तो हाँ, मेहनत तो खुद करनी जैसे पड़ेगी। आप मतलब आज की डेट में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे सामने अगर कोई ये बात करता है ना कि मेरे को शुगर है, मैं तकलीफ़ में हूँ, तो मेरा जो क्वेश्चन होगा उसके प्रति मेरे को, मैं ऐसा कोई मर्सी फील नहीं करता या मुझे सिंपैथी नहीं होती। मेरे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हो। शुगर है, बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है। बिल्कुल। आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं इस शुगर से निकलने के लिए? तो बस फ़र्क सिर्फ़ सोच का है। बिल्कुल ठीक बात है। प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन क्या कर रहे हो आप है इसके ना? लिए? आपको कर अपनी क्या, बात से प्रॉब्लम भी तो तो आ कुछ गई है। डालना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे जो समझ में आया था वो कैंसर के बारे में, वो इतना ही समझ में आया था क्योंकि एज़ ए लेमैन, क्योंकि मैं अकाउंट साइड से हूँ, मुझे ज़्यादा साइंस का या बायोलॉजी का या मेडिकल का पता नहीं था। मुझे सिर्फ़ इतना समझ आया कि इट्स अ फाइट बिटवीन गुड सेल्स एंड बैड सेल्स। आपके लेथार्जिकनेस की वजह से, आपका लाइफ़स्टाइल बुरा होने की वजह से, जो भी कहिए कि आप ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहते थे, 8 घंटे बैठ के काम करते थे, टेंशन ज़्यादा लेते थे, आपके वो बुरे लाइफ़स्टाइल की वजह से वो बैड सेल्स जो थे वो गुड सेल्स के ऊपर हैवी हो गए।
दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि ये जो इलाज है ये एक सर्टेन लिमिट तक हेल्प करेगा, क्योंकि ये जितने भी मेरे को चीज़ें दी जा रही हैं न्यूक्लियर मेडिसिन या और जो भी थेरेपीज़ देंगे, क्योंकि हमारी साइंस में अभी भी इतनी तरक्की नहीं हुई है कि वो आपके गुड सेल्स और बैड सेल्स में डिफाइन कर पाएँ। वो मेडिसिन्स जो भी अटैक करेंगी वो आपके दोनों सेल्स को वीक करेंगी और आप उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल और ज़्यादा वीक होंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो तो मेडिसिन कहाँ आइडेंटिफाई कि वो बैड सेल है या गुड सेल है। हाँ जी। तो आज की डेट में अगर मेरे को, जैसे इसके बाद भी मुझे एक चैलेंज आया, मुझे सेकंड कोविड के टाइम पे मेरे को कोविड के लपेटे में मैं आ गया और कोविड की जो मेडिसिन्स थी वो आज तक भी किसी को आइडेंटिफाई नहीं है क्या मेडिसिन्स थी। बिल्कुल। आँख बंद करके डॉक्टर्स जो भी दे रहे थे, बड़ी हाई डोजेस थी, हाँ जी। उसकी वजह से मेरे लीवर को भी चैलेंज आया। ओह! तो लेकिन ड्यू टू दैट डाइट ओनली मैं उसको कवर करने में, अपने आप को बचाने में आज तक कामयाब हूँ, साइड इफेक्ट्स के It's बाद। so wonderful. It's so wonderful. It's your trust in yourself. वेरी मच, वेरी। This is देखो, very मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। beautiful. बिल्कुल ठीक बात। अगर आप ही हार गए तो फिर डॉक्टर कुछ फिर नहीं कर कुछ नहीं हो सकता। सकता। हाँ फिर जी, कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। आज मेरे डॉक्टर्स मेरे से बहुत खुश हैं और मेरे साथ मेरे को नॉर्मल लाइफ जीने में मेरी पूरी हेल्प करते हैं और मेरी जो डाइटिशियन है उनकी सपोर्ट बहुत रहती है। मैं एवरी ईयर उनके पास कंटिन्यूसली 9 टू 10 मंथ्स जाता हूँ। उसके बाद मैं 1 साल अपना मौज मस्ती करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपनी सफाई कर ली है, हालाँकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी मनमर्जी करता हूँ और फिर उसके बाद उनके पास पहुँच जाता हूँ और मैं नहीं भी जाता, तो उनको कोई लालच नहीं है, बस वो मेरे से टच में रहती हैं। मिस्टर सिंह, आपने अपने टेस्ट करवा लिए, लीवर का टेस्ट करवा लिया। जब वो बहुत ज़्यादा कंपेल करती हैं तो मैं अपने टेस्ट करवाता हूँ और वो मेरी रिपोर्ट्स देख के बहुत खुश होती हैं। नहीं, मैंने भी अभी छोटी-सी जर्नी शुरू करी है। आई एम प्लानिंग न्यूट्रिशनल मील प्लानिंग कर रही हूँ लोगों का। उसके अंदर मैंने देखा है कि इट इज़ नॉट डाइट तो आपको मिल जाती है, हाँ जी, चाहे गूगल से भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, बट जो हैंड होल्डिंग करते हैं ना उसके अंदर, हाँ जी। कि वो डॉक्टर आपके साथ टच में रहते हैं और आपसे बातचीत करते रहते हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स यू कंटिन्यू दैट जर्नी। वो ज़रूरत है, वरना हम गिव अप कर देते हैं बीच में। अकेले चलते रहते हैं ना, गिव अप कर देते हैं। तो सपोर्ट मिलता है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो। हाँ आई जी, थिंक वी आर हाँ जी। एबल टू वॉक दैट पाथ देन आराम से। जैसे आप कह रहे हो कि आपको वो रिमाइंड करते हैं कि टेस्ट करवाया, नहीं हाँ, कराया या क्या हाँ। कर रहे हो। देखो, आपको ना एक अच्छे लोग मिलना, एक अच्छा डॉक्टर मिलना, हुँ, ये भी एक भगवान की मेहर होती है, तभी बिल्कुल, मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप देखिए, आपने खुद इस टॉपिक को चुना है, नहीं तो एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आप सबको जागरूक करना चाह रहे हैं, तभी आपने फूड से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक को चुना है और आप ये रेगुलर कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज सारी दुनिया तक पहुँचे, ताकि सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो मुझे भी, मैंने ऐसा नहीं कि मैं ओवरवेट था तो मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया था। मैं अब वो डायटीशियन का नाम नहीं लूँगा, मैं बहुत बड़ी डायटीशियन के पास एक बार साउथ दिल्ली में भी गया था, ये बीमारी से पहले। ओके, समबडी हैज़ रिकमेंडेड मी कि आपको जाना चाहिए, लामा साहब आप गोरे चिट्टे हो, ये क्या ओवरवेट कर रखा है, ये क्या? तो लेकिन मैं वो डायटीशियन के पास गया तो डायटीशियन का कोई लेना-देना नहीं था मेरी डाइट से। शी वाज़ मोर कीन अपनी दालें बेचने में, अपने दलिये बेचने में। तो नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन तब वो बात नहीं हो पाई। अब जब इतनी बीमारी के बाद रिकवरी के टाइम पे जब मैंने इन डॉक्टर टीना सप्रा को जब मैंने रिलेट किया, तो वन थिंग कि वो डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी देती हैं वीकली बेसिस पे। वो किसी को कुछ नहीं बेचती हैं। आपको थ्रू फ्रूट्स, सैलेड्स, आपकी रॉ डाइट के थ्रू, आपके फूड के थ्रू जो आप खुद खरीदोगे, खुद खरीदोगे। उसमें उनका कुछ लेना-देना नहीं है। वो आपको ऐसे गाइड करती हैं और शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड। और आपको एजुकेटेड के बाद एक चीज़ और है कि आपको फ़ेथ आएगा कि देयर इज़ अ साइंस फॉर दिस डाइट। फूड क्या खाना है, कितना खाना है, इसका क्या टाइमिंग्स हैं और कैसे उसको बैलेंस्ड वे में खाना है। ये उनकी तो बहुत आप बड़ी, ठीक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास और ठीक डायटीशियन के पास पहुँच गए अपने ये इलाज के लिए। मैं अपने स्टार्स को या अपने बिल्कुल, उसको मैं थैंक गॉड को मानता हूँ कि बिल्कुल, जिन्होंने मुझे बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छे लोगों से मिलाया। बिल्कुल, बिल्कुल। आज मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी जी से, डॉक्टर टीना सप्रा मैम, मैं उनका, मेरे लिए वो गॉड का दूसरा रूप है। हाउ वंडरफुल। हाँ जी। आई होप शी रियली वॉचेस इट, उनको आपका मैसेज मिले। देखो जी, आई रियली होप वो सो। उनको तो मिले ना मिले, लेकिन आम पब्लिक तक या और मेरे जैसे लोगों जिनकी सेहत ठीक नहीं है या आगे ठीक रखना चाहते हैं, उनको ज़रूर मिलना चाहिए और उनको अच्छे डॉक्टर्स तक पहुँचना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, उनको अपने ऊपर फ़ेथ रखना फेथ चाहिए रखना चाहिए, और बिल्कुल अपने सही बात है। एफ़र्ट्स भी डालने चाहिए उसमें। उसके बिना काम नहीं चलता, उसके चाहे कुछ भी हो, हाँ चाहे जी। कुछ भी हो। हाँ जी।
Wonderful, wonderful. It was really nice to know your journey completely till here. तो इसको थोड़ा सा हम लाइट करने के लिए एक रैपिड फायर क्विज खेलते हैं आपके साथ. हाँ जी. And let's call it from survivor to a superstar now. हाँ. आप describe your journey in one word, whatever comes to your mind. देखो, उसमें तो मैं यही करूँगा कि गॉड इज़ ऑलवेज काइंड टू मी, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी बीच में शुरू में भी बोला हाँ कि जी. मैंने इस बीमारी को आज की डेट में, मैं इसको एक्सीडेंट नहीं बोलता, मैं इसको अपना आई ओपनर मानता हूँ. अगर ये आई ओपनर मेरे लिए नहीं हुआ होता तो शायद मैं सोया सोया ही, जो मेरी आदतें थी खाने पीने की, जिस लाइफस्टाइल को मैं जी रहा था, शायद मुझे सेकंड चांस ही ना मिलता. तो मैं अपने स्टार्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और मैं आई एम ए ब्लेस्ड मैन. गॉड इज़ ऑलवेज काइंड टू मी. So beautiful, so beautiful. अच्छा, मैं बॉलीवुड को बहुत मेंशन करती हूँ बिकॉज आई लव बॉलीवुड. सो बॉलीवुड सॉन्ग अगर आपने अपनी सारी जर्नी में कुछ सुना होता है, एक एक गाना हम बार बार ही गुनगुना रहे होते हैं जो हमें खुशी देता है या हेल्प्स अस सेल थ्रू, वो कोई था या सुखमनी साहब का पार्ट ही था आपके नहीं, लिए? सुखमनी साहब का पार्ट तो था ही, लेकिन यहाँ एक राज कपूर का पुराना गाना है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार. वो गाना मेरे को किसी बहुत का अच्छा दर्द लगता है. मिल सके तो ले निसार. उधार. और मैं यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल ना, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे सेकंड चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा. लेकिन उस टाइम मेरे मन में बहुत थॉट्स जाया करते थे कि अगर मुझे भगवान ने मौका दिया तो मैं सोसाइटी के लिए ये करूँगा, मैं सोसाइटी के लिए वो करूँगा, मैं हेल्थ के ऊपर बुक्स लिखूँगा. हालांकि ये एक ख्याल था, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है. जब आप वापस लाइफ में जाते हो तो आपको अलग टाइप के चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं. एक बार हाँ जी. आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया तो नोबडी केयर्स के आप कैंसर सर्वाइवर हो या क्या हो, आप ऑफिस में आ गए हो, अब आप फिट हो और आपको काम करना है. एक चैलेंज जो थोड़ा सा मैं आज तक भी फिट करता हूँ कि भगवान ने इतनी मेहर कर दी है, तो उस मेहर का ये हो गया कि मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि अब मेरे को सब फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. ये एक अच्छी बात भी है. अभी कई बार मेरे डॉक्टर हंसते हैं कि आज मोर देन 10 ईयर्स होने वाले हैं, मैं अपने रिव्यू के लिए अकेला ही जाता हूँ. तो वो डॉक्टर कई बार मेरे को हंसते हुए कहते हैं कि यार मैडम तो बिल्कुल फ्री हो गई हैं तेरी ओर से. तो इसको भी हम पॉजिटिव नोट पे लेते हैं कि बिल्कुल, और बिल्कुल. भगवान ने इतनी मेहर करी कि इसी नहीं, और एलन हाथी अब खुद इसी करेंगे और सब पलट कुछ. के सोचना भी नहीं पड़ता कि कभी कैंसर. कभी कैंसर. हाँ, ब्यूटीफुल, हाँ, ब्यूटीफुल. अच्छा, नेम 5 फूड आइटम्स that you had to heal your body and starve the cancer. देखो, जो शुरू में आपने तो enjoy भी करी हाँ, थी. देखो ऐसा ही है ना, स्टेजेस में बदलती रही. लेकिन आज की डेट में हमारे 2-3 चीज़ें हैं जो हम अपने घर में कभी भी ख़त्म नहीं होने देते. उसमें एक है एप्पल, दूसरा है पपाया. वैसे ओके. नॉर्मली डॉक्टर्स का मानना ये होता है कि कोई भी सीजनल फ्रूट हो वो ज़रूर खाना चाहिए. बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन एप्पल में आयरन है, और पपाया जो है वो हेल्प करता है. कॉन्स्टिपेशन किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए. हाँ जी. आप मैं अब कैंसर का एक दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ. जैसे हम स्कूल में थे तो मम्मी ज़बरदस्ती लंच बॉक्स आपको डाल के देती थी, और हमारा मन नहीं होता था हम उसको छोले भटूरे खा लें, और वो लंच बॉक्स एज इट इज़ वापस आ वापस जाता चला था. मान लो आगे सैटरडे संडे छुट्टी है, वो लंच बॉक्स अगर बैग में से नहीं निकला तो आप मंडे को जब आप खोलोगे ना तो वो इतना उसमें फंगस लगी हुई होगी, बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल. इतना बदबू मार रहा होगा. हाँ जी. तो वो सेम जो चीज़ है ना वो आपकी बॉडी के साथ भी है. आपने वो जो जंक फूड खाया है या आपने जो भी खाया है जिसको आप पचा नहीं पाए हो, वो बॉडी के अंदर वो जो फंगस ही पैदा कर रहा है, यही तो कैंसर है. तो एक एप्पल, बिल्कुल सही कह रहे हैं. पपाया, और कुछ ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स, भीगे बादाम, और ब्लड को निकालने के लिए, ब्लड को आपके पूरा करने के लिए अंजीर जो है उसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा. और इसके अलावा एक छोटा सा इंस्टांस और बताऊंगा, उसको कोई रॉन्ग सेंस में ना ले. मेरे को 2 बार जाना पड़ा था ऑपरेशन के लिए, क्योंकि कैंसर सेल्स जो है ना वो कुछ ना कुछ रह जाते हैं. तो वो मेरे फर्स्ट के टाइम पे पता चल गया था कि थोड़े से रह गए हैं, अगर ये ग्रो करेंगे तो हम सेकंड टाइम दोबारा करना पड़ेगा. तो मेरा 6 मंथ्स के बाद दोबारा ऑपरेशन हुआ था. तो फर्स्ट में जो मेरे को एक इशू आया था कि ड्यू टू मेडिसिन, ड्यू टू गला काट के जो थायराइड निकाला जाता है, और जो हैवी, मेरे चेहरे की स्किन उतरती थी, पपड़ियाँ की पपड़ियाँ. उसके लिए वो मेरे को दुनिया भर की बड़ी-बड़ी महँगी-महँगी क्रीम्स देते थे. और आपको मतलब आश्चर्य होगा कि मैं 7 और 8 हीमोग्लोबिन पे वापस आता था ऑपरेशन के बाद. ऑपरेशन के बाद तो सेकंड टाइम जब मेरे को 6 मंथ्स मिले थे तो मेरा एक फेवरेट स्टोर है रूपक स्टोर करोल बाग में. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. वो एक बचपन फेथ की हम बात बहुत होती है, जाते ऑल्दो थे. इट्स वेरी कॉस्टली. हाँ, मैं उससे मामरा बादाम हाँ. और ये अखरोट, और मैं उससे ना जो अपना बादाम रोगन ले आया था,
और मेरी यही थी कि वो मैंने स्पेशल उनसे अप्रूवल ले ली थी कि ये मैं अपने साथ रखूँगा अपने रूम में, और मैं वो बादाम रोगन अपनी पूरी बॉडी पे लगाता रहा, चेहरे पे लगाता रहा, और वो ड्यू टू दैट मेरे ख्याल से 4 मंथ्स भी नहीं लगे होंगे मेरे को वापस अपना हीमोग्लोबिन 14 तक लाने में। वंडरफुल। हाँ जी। इट्स ऑल हम डाइट से बहुत कुछ हाँ, चीजें डाइट ठीक से कर बहुत सकते कुछ होता है, उसमें एक चीज़ और है कि आपको फेथ भी होना चाहिए। हैं उसमें। फेथ भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैं अपने रिलेशंस में ही देखता हूँ, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वो चले तो जाते हैं लेकिन वो घर में आते हैं, दवाई बाद में खाते हैं, पहले ही कहते हैं डॉक्टर ने तो लूट लिया, मेरे तो अन्य पैसे पट्टे गए। बिल्कुल। तो आपको जब उस डॉक्टर पे ट्रस्ट ही नहीं आया तो आपको जाना ही नहीं था, आपने दवाई पैसे भी लगेगी नहीं, वेस्ट वो किए, वो कहते हैं दवाई दवाई लगेगी लगती नहीं। नहीं है। हाँ हाँ जी, वो दवाई लगेगी नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप अपने डिसीजन के ऊपर पहले तो फर्म रहिए, और आप उसी डॉक्टर के हवाले अपने को छोड़िए जिस पे आपको फेथ आता है। फेथ आता है। अदरवाइज सारी चीजें जो है वो फेल हो जाती फेल हो जाते हैं, बिल्कुल आई एग्री विद यू कम्प्लीटली। अच्छा, अभी आपका गिल्टी प्लेजर क्या है जो आप मॉडरेशन में अभी भी इंजॉय करते हैं? देखो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे बोलते हुए थोड़ा सा अजीब तो लगता है, मेरे को ना फूड का, कुकिंग का बहुत शौक है, और मेरे को ड्रिंक्स का बहुत शौक था। आई अच्छा। वाज क्रेजी अबाउट दैट। ओके। तो जो मेरा सबसे पहले ये चीज़ें स्टॉप हुई ड्यू टू कैंसर, तो उसके बाद 1-2 साल तक मेरा डॉक्टर से मिलने के बाद ना मैं अपनी वाइफ को कहता था कि यार आप ज़रा बाहर जाना, क्योंकि डॉक्टर मुझे प्रिस्क्रिप्शन के बाद हौसला अफजाई जो देता था, तो मेरा उसको पहला क्वेश्चन ये होता था, डॉक्टर साहब मैं शुरू कब कर सकता हूँ? तो ही मतलब इज़ अ वेरी वेरी काइंड डॉक्टर। तो धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल हो गई, जैसे मैं आज आपको कह रहा हूँ। तो आज मैंने अपनी एक लिमिट फिक्स की हुई है कि मेरे को अगर मान लो चीट डाइट भी करनी है, तो मैक्सिमम 15-20 दिन में 1 बार। देखो अपने आप को भी धोखा नहीं देना है, और उसके बाद अगर मैं वो चीट डाइट जो जो ड्रिंक पार्टी या थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, तो उसके बाद मुझे गिल्टी महसूस होता है। मुझे चैन नहीं पड़ता जब तक उसको बॉडी से निकाल ना लो, थ्रू डिटॉक्स विद द हेल्प ऑफ माय डाइटिशियन, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, अब उन्होंने ऐसा नहीं है कि बार-बार कंसल्टेंसी के लिए उनके पास जाना पड़ता है। हाँ जी। उन्होंने हमें इतना ग्रेजुएट कर दिया है कि आपने पार्टी करने के बाद अगले 2 दिन कैसे एप्पल पपाया करके अपने आप को क्लीन करना है। एप्पल पपाया खाना खा के क्या फूड आपको लेना है जो आपको डिटॉक्सिफाई करेगा, ओह नाइस। है ना? आज भी मुझे कोई दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ आके स्टोरी रुक जाती है। इसके बाद घर में बच्चे हैं और चीज़ें तकलीफ़ हुई। मेरी छोटी डॉटर को भी एक स्किन की प्रॉब्लम शुरू हुई। तो वो सब चीज़ें हमने थ्रू डाइट, थ्रू डॉक्टर डाइट, टीना सपना मैम की डॉक्टर साहब की वजह से, उनसे कंसल्टेंसी लेके हर चीज़ों को हमने एड्रेस किया, करेक्ट किया। और मैं यहाँ गुड़गाँव में ही रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरे लिए सभी लोग वेलकम हैं। आइए हमसे बात कीजिए, हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी विद अस। आपको फेथ भी आएगा, आपको चीज़ें भी दिखेंगी। दैट्स सो नाइस, दैट्स सो नाइस। अच्छा, अपनी सारी कैंसर जर्नी को अगर आप एक मूवी टाइटल दें, हाँ जी। तो क्या नाम देंगे उसको? देखो इस टॉपिक पे कभी मैंने सोचा तो नहीं, बट मैं शुक्र है भगवान का, बस यही कहता हूँ। नाइस, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लामा साहब। पर मेरा एक फेवरेट गाना है जिसकी कुछ लाइन में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा, कि दुख से झुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। दिस इज समथिंग लाइक नेवर स्टॉप, चलते रहो, हाँ जी। काम चलता रहता है। चलती का नाम ही गाड़ी है जी। चलती का नाम ही गाड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू कम्प्लीटली। चलती का नाम गाड़ी है। दफ्तर में जाते हैं तो जो जीता वही सिकंदर है। तो हमने वो जो जीतने की और हारने की रेस जो है उससे बाहर हो गए हैं, और निरंतर अपना गुड फूड को एंजॉय कर रहे हैं। विद द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छे लोगों से भगवान मिला रहा है। हमारी किस्मत में आपसे मिलना लिखा था। आप जो ये पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, और मीन्स अ लॉट टू मी। मज़ा तब है कि हमारी बात सुनने के बाद 4 लोग और आपको आकर बोले कि हमने अपने अंदर ये करेक्शन की है। बिल्कुल, हमें उससे बहुत ज़्यादा खुशी खुशी की होगी। कोई बात ही नहीं होगी। हाँ जी, किसी एक की भी ज़िंदगी में हम कुछ बेटर चीज़ ला पाएँ या होप ला पाएँ, हाँ उससे बेटर कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा, इस सारी जर्नी में एक चीज़ मैं छोटी-सी और बताना, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली इंट्रोडक्शन में बताया था, आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ जी। और मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब है कि उस डॉक्टर की भी करेज चाहिए जो हमें एडमिशन दे रहा है हमारे इलाज के लिए, क्योंकि उसको जो सीजीएचएस रेट्स जो उसको मिलने हैं, उसको वो नेग्लिजिबल रेट्स मिल रहे हैं। अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा ठीक करने में। ओह!
ऐसा भी होता हाँ, है? मुझे क्योंकि वो उस ज़माने में तो सीजीएचएस के पेशेंट्स को एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो वो डॉक्टर हरि चतुर्वेदी एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे भगवान के रूप हैं, जिन्होंने मतलब हमने उनमें भगवान देखा या उन्होंने हम में क्या देखा, जो उन्होंने हमारी मदद की, वो भी इतने कम रेट्स वाले पेशेंट से। मुझे नहीं लगता है कि कुछ मैक्स हॉस्पिटल ने मेरे से कुछ कमाया होगा या कुछ डॉक्टर्स ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ उनको मिला होगा, लेकिन टिल डेट वो कोई फ़र्क नहीं करते हैं। और आई एम अ ब्लेस्ड मैन, जो वर्ड्स मैंने आपको बोले थे कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे लोग मिलाए। वही ठीक जगह पहुँच जाना बहुत बड़ी बात होती है। हमारा आधा क्योर वहीं हो जाता है, हम सही राह पे चल पड़े तो। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच आज के थैंक यू लिए। सो मच जी, आई थिंक थैंक यू, इट वाज़ वेरी हार्ट रेंडरिंग और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. As we wrap up this episode, I just want to take a moment to reflect on what Gigi's story has truly taught us today. That healing is really not about hospitals and treatments. It's about faith. It's about love. It's about never giving up on yourself, no matter what life throws at you. It's about choosing every day to live life fully, never giving up. The story also reminds us that resilience is not always a roar. It can be absolutely quiet, found in a daughter's smile, in a doctor's reassuring words, or simple home cooked food. And sometimes it's just believing that there is going to be a better tomorrow. So if you or someone who is going through some challenging phase of their life right now, and let this conversation reach them and remind them that our bodies can heal, our minds can find peace. It's all about the 3 F's: faith, family, and food. If you're able to handle them, I think you can handle anything in your life. So please like our channel if you like our show. Subscribe to it. It will be a pleasure completely. Until next time, take care of yourself. Thank you so much for listening.